So shall we start? Start, ma'am. Okay. Good morning, students. On behalf of my facilitator, Mr. Videsh Sagar Malik sir from Core Academic Unit, I will start this lesson with a motivational proverb that great things are not done by impulse, but a series of small things brought together. मतलब ग्रेट थिंग्स एकदम से नहीं हो जाती हैं, बल्कि लगातार छोटे छोटे स्टेप्स करने से ही होती है। और फॉर मैथ्स लगातार और छोटे छोटे ये दो वर्ड बहुत जरूरी हैं। लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स एन enjoyable subject. So in maths, or to overcome the fear of maths, mantra is don't read it, just do it. I always tell my students in the class, please don't sit in the class idle and just listen to me. Don't read maths. Maths ko padho nahi, karo. Practice, practice and practice. This is the only way to get 100 marks and enjoy maths. Three, four things I want to discuss as an introduction. First, just follow NCERT books, as NCERT book is the Bible for maths. First, follow NCERT book, read it page by page, do each and every example till the last question of the exercise. Then switch over to the other source. Go for NCERT Exemplar, for HOTS question, go for solved limited questions of R.D. Sharma for reference, because R.D. Sharma is a very, very vast book. So to embed it good concept and to solidify your concept, go through solved questions of R.D. Sharma first. Since you are taking live classes for the first time, I would like to introduce you or to follow some protocols so that these sessions become useful, effective. First thing is sit at a quiet place with doors closed, good internet connectivity, preferably sit on table or chair rather than on bed. Secondly, sit with a copy pencil, because you should take small notes. We will be giving you some pauses between our classes so that you can comprehend the concept and note it down as short notes at your end also. Similarly, we will be giving you some questions for practice also and a pause so that you can also comprehend the question and try it at your level. So sit with pencil and copy. Don't just listen to us. Since you will be having 2-3 sessions per class per week, so I will advise you to follow the schedule properly and revise the concept which was discussed in the previous class a night before the next class. It will be easier, because in maths you cannot do like this, okay मैंने Monday को पढ़ लिया था अब मैं Friday को पढ़ूंगा. No, you have to be rigorously continuously doing maths. चाहे आप 10 क्वेश्चन दिन में करें, 5 करें, लेकिन करें जरूर. Don't get disconnected with the maths, because disconnection with the maths is very, very harmful. Practice daily 1 hour to a maths daily. और उसका सीक्वेंस ऐसे ही रखिए बच्चों कि पहले NCERT की बुक, फिर solved example of R.D. Sharma if you have some problem, because that is the solved problem, and for the next level for NCERT Exemplar. So today I, Mrs. Madhulika, lecturer maths SOE Dwarka, along with my facilitator Mr. Videsh Sagar Malik sir from Core Academic Unit, will share this session. So the timeline for the lesson we have decided. First, the general instructions for the students to be followed during live classes, which I have already covered. Secondly, Vidyasagar sir will introduce about the CBSE curriculum, blueprint of the CBSE. Then today we will be starting chapter 3 of the NCERT book, matrices. Introduction, terminology and up to equality of the matrix will be discussed by Vidyasagar sir. Then types of matrices will be covered by me. Maths without question is unimaginable. So we have compiled some very interesting questionnaire so that you start enjoying matrices. For questions, we will be showing the questions in our PPT slide. Pause for some time so that you can read it, comprehend it, and think for a minute
how to go or how to follow the steps to do it. We will be giving pause for some time so that you can do it or solve it manually, orally, or in a copy. Then we will zoom the solution on this PPT and explain all the steps. This is the protocol we will be following all our panelists for questions. So that's all, students. Have a nice journey of maths learning only. So I'll hand over to Vidyasagar sir for their session to be started. Thank you, ma'am. Thank you, Madhulika ma'am. Ma'am, stop sharing screen. विद्यासागर जी हिंदी भी इस्तेमाल करें. हेलो सर. जी सर. हेलो स्टूडेंट्स. आप लोगों को लॉकडाउन पीरियड में अपने घर में रहकर अपनी तैयारी करनी पड़ रही है और आपके मन में बहुत सी इच्छाएं होंगी या आपके ड्रीम्स भी होंगे और सपने भी होंगे कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसकी परेशानी आपको सता रही होगी. इवन आपके पेरेंट्स भी वरीड होंगे. जितने आप लोग वरीड हैं उससे ज्यादा हमारी दिल्ली सरकार, हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये सारी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो आपके लिए वरीड है और एक से एक पॉलिसीज आपकी सुविधा के लिए लाई जा रही हैं. जिसमें ये जो न्यू पॉलिसी आई है जिसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कंडक्ट की जा रही हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट से द्वारा और उसको आपने एंजॉय करना है. मैथमेटिक्स के बारे में जैसे मधुलिका मैडम ने बताया कि प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको उस सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप करनी है. फ्रेंडशिप का मतलब जब तक आप उस सब्जेक्ट को पहचानेंगे नहीं, गले नहीं लगाएंगे, यानी एक एक उसके मेंबर्स को, एक एक अवयव को समझेंगे नहीं, तब तक मैथमेटिक्स आपको डराता रहेगा. मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि जनरली बच्चे जो हैं, क्योंकि फैक्ट्स उनको क्लियर नहीं होते हैं, तो ना क्लियर होने की वजह से आधे बच्चे मैथमेटिक्स को छोड़कर चले जाते हैं बीच में. तो आपको मैथमेटिक्स से घबराना नहीं है. मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं अपने आप से. जब तक फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप मैथमेटिक्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. और मैथमेटिक्स को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चनर या स्टेटमेंट दी जाती हैं या थ्योरेटिकल पार्ट है एनसीईआरटी की बुक्स का, उनको आपको करना है. मैथमेटिक्स में आपको पता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपके मार्क्स जो है इंप्रूव हो सकते हैं. ये जीरो भी बनाता है और हीरो भी बनाता है. जीरो कब बनाता है? जब आप मैथमेटिक्स को रटते हैं, यानी क्रैमिंग करते हैं. आपको मैथमेटिक्स को रटना नहीं है. जैसे मधुलिका मैडम ने कहा कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की. डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है. एनसीईआरटी के साथ साथ उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और डिफरेंट बुक्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना है. वो पढ़ने के साथ साथ आपने ये देखना है कि मेरी तैयारी कितनी है. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करने के लिए क्या मैं तैयारी मेरी एनफ है कि मैं बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकता हूँ? उसमें आपको पता चल जाएगा. आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स टाइप वाइज आपको बनानी है. एक रजिस्टर में डिफरेंट टाइप्स आपको कवर करनी है. जैसे मान लो कोई एक चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया, उसमें टाइप ए है, उस टाइप ए पर जो एग्जाम्पल आपको कराया जाएगा उस एग्जाम्पल पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफरेंट बुक्स में से, एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी के अलावा डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में से अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी आपकी ओवर हो चुकी है, तो आपने रेफरेंस बुक का सहारा लेना है. और रेफरेंस बुक का सहारा तब लेना है क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत काफी है. क्योंकि अभी इस साल के पेपर में जो दिल्ली का पेपर था उसमें एनसीईआरटी में से आउट ऑफ 36 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक में से आए थे. यानी सीबीएसई का जो नया सिलेबस था उसमें आउट ऑफ दिल्ली के भी कुछ स्कूल्स के पेपर्स थे या डिफरेंट रीजन के पेपर्स थे. उसमें मेजोरिटी में ये पाया गया कि एनसीईआरटी जो है वो पे करती है. यानी एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते. एनसीईआरटी की डिफरेंट बुक्स हैं, उसको आपने समझना है, उससे दोस्ती करनी है, यानी डिफरेंट टॉपिक्स को समझना है और फंडामेंटल्स अपने क्लियर करके आगे बढ़ना है. तो इसमें आपको मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाने के लिए हमारी दिल्ली सरकार की पहल है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएं. तो हमारे डिप्टी सीएम यानी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी की पहल से हमारे डायरेक्टरेट में डायरेक्टर सर विनय भूषण सर और एडिशनल मैडम सरोज मैडम और तमाम एग्जाम ब्रांच आपके लिए तत्पर तैयार रहते हैं कि आपके डिफरेंट टाइप के वीडियो लेक्चर्स तैयार हों और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स तैयार हों और आप लोगों तक पहुंच सकें. और उसको पहुंचाने के लिए मैं आपको स्क्रीन डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में और 11th क्लास में कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े होंगे. कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज भी आपकी 12th में काम आएगी. जैसे आपने
अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा में डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ी होंगी और इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको हुई होगी कि इक्वेशंस बनती कैसे हैं। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन का अगर आपको आइडिया है तो हम आगे अलजेब्रा में आगे बढ़ सकते हैं कि जब एक्सप्रेशन के लिए टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, यानी उस मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स से, डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने अपने आप को रूबरू कराना है। यानी फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंडशिप का मतलब जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो उसके बारे में पूरा जान लेते हैं। पूरा जानने का मतलब वो किस परिवार से है, कैसा है और कैसे अवयव हैं, उनके परिवार में कैसे सदस्य हैं, यानी उस परिवार के सदस्यों की बजाय यहाँ हम मैथमेटिक्स की तरफ चलें तो मैथमेटिक्स में अगर हम सिलेबस को पहले देखेंगे तो सिलेबस देखने के बाद हमें देखना है कि सबसे पहले तो सिलेबस हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोटिव, हमारा जो मिशन है उसको ध्यान में रखना है, ड्रीम को ध्यान में रखना है। उस ड्रीम को ध्यान में रखते हुए हमें स्टडी करनी है और साइड बाय साइड स्टडी करने के साथ साथ हमें अपने नोट्स भी बनाने हैं। समझ पा रही हैं आप? इसमें नोट्स बनाने के साथ साथ हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम नोट्स बनाते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे तो आपको अगर टाइप क्लियर हो जाएगी तो वो टाइप क्लियर होने के बाद दुनिया के किसी भी कोने से अगर किसी भी टेक्स्ट बुक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने में हाँ जी, मेरा नाम है विद्यासागर मलिक। मैं कोर एकेडमिक यूनिट से हूँ और फैसिलिटेटेड बाय डॉक्टर श्रीनिवासन सर हैं। और मैथमेटिक्स में हम आगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ते जाएंगे और उसको पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले सिलेबस का ब्लूप्रिंट। सिलेबस के ब्लूप्रिंट के बाद आप देखेंगे इसमें cbseacademic.nic.in वेब ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। ये लिंक है आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका सिलेबस सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है मेरा, उस सिलेबस में मैंने पढ़ना क्या है। तो इसको क्लिक करेंगे और सिलेबस आपका आपने ओपन हो जाएगा। ये आपके 12th का सिलेबस है। 12th का सिलेबस जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। उस सिलेबस में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें आप पढ़ते जाएंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप कि आपने यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, यूनिट 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, यूनिट 2 अलजेब्रा है, जैसे उसमें मैट्रिसेस पढ़ना है। और मैट्रिसेस के बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स सिलेबस के जो है उसको एक एक को आपने स्टडी करना है कि क्या क्या चीज सीबीएसई ने हमारी नई एडिशन की है। अगर कोई चेंजेस किए हैं तो आपको इस सिलेबस में पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स भी आपको दिए गए हैं इसमें कि कितने पीरियड्स आपको हर एक चैप्टर में दिए गए हैं। उस पीरियड्स के हिसाब से उस चैप्टर की वेटेज है, उस वेटेज को आपने ध्यान में रखते हुए डिफरेंट चैप्टर्स को आपने पढ़ना है। आप जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, सबसे पहले जो हम ऑनलाइन लेक्शन जो स्टार्ट करेंगे इसमें आपको मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। जो लेटेस्ट ट्रेंड है और जो मार्किंग स्कीम है, टोपोलॉजी क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में बता देता हूं आपको। जो 55% वेटेज है आउट ऑफ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें 55% जो वेटेज है वो रिमेम्बरिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे, यानी एक नंबर के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उन पर क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं कि एक नंबर के हो गए या 2 नंबर के हो गए या स्टेप से जो भी वेटेज आपकी दी हुई है मार्क्स के हिसाब से आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और सॉल्व करना है। आगे एप्लीकेशंस के एनालाइज करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो डे बाय डे जैसे आपको सिलेबस को पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको डिफरेंट टॉपिक से हम अवगत कराते जाएंगे। अभी हम स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया सीबीएसई का ब्लूप्रिंट। सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में सिलेबस हमने डिस्कस किया। अभी सिलेबस के बारे में, सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लें। सबसे पहले सिलेबस जरूरी है क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन, आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, नोटेशन, कैसे मैट्रिसेस को डोनेट करते हैं, नोटेशन के बारे में,
टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और एमसीक्यू एक्सरसाइजेस होंगी आपकी, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी 3.1 विद सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्लूप्रिंट में आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था कि सिलेबस में आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स डिवाइडेड है, 8 मार्क्स का आपका रिलेशन फंक्शन आना है, अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का आना है, कैलकुलस आपकी 35 मार्क्स की आनी है, वेक्टर्स 14 मार्क्स की आनी है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की आनी है, और प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आनी है। यानी इंटरनल असेसमेंट के भी नंबर दिए गए हैं। पहले आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं हुआ करते थे, लास्ट ईयर से इंटरनल असेसमेंट के नंबर 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आपके अच्छे अंकों से आप पास हो सकें। मैथमेटिक्स आपको पता है कि मैथमेटिक्स में आप अच्छे अंकों से पास होंगे जब आप एक एक फैक्ट्स, एक एक फंडामेंटल उस मैथमेटिक्स का आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे पिछले ब्रेकअप के हिसाब से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, पेपर आया था सीबीएसई का 2019-20 में, उसमें क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस है 1 + 1 + 2 + 4, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन, या 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इस टाइप से ये डिफरेंट ब्रेकअप आप देख रहे हैं, ये आपको शो कर रहा है स्क्रीन पर। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हुई थी, उस एनालिसिस में यही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर साल जो भी आपका अटेम्प्ट आता है उसकी रिसर्च एनालिसिस होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किन बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए और कहां पर किस पॉइंट पर बच्चे वीक रहे। उन वीकनेस को, यानी लर्निंग आउटकम आपका कितना रहा, उसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट एनालिसिस करता रहता है। टाइम टू टाइम नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं और उसमें आपको बताते रहते हैं कि क्या क्या स्कीम्स अप्लाएं या क्या क्या नई नई टेक्निक्स अपनाएं ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो सकें। इसमें आप देख रहे हैं ब्रेकअप आपको दिया हुआ है कि 1 मार्क का रिलेशन एंड फंक्शन में आप देख रहे हैं कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं आया था रिलेशन फंक्शन में, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी टोटल जो हमारे मार्क्स हो गए 5, यानी 5 मार्क्स का रिलेशन एंड फंक्शन में से आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आप देख रहे हैं कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और टोटल हमारे पास 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन टोटल हो जाता है हमारे पास 3 मार्क्स। इस तरह से मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं 4, 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, मतलब 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 6 मार्क का क्वेश्चन वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। ये चैप्टर जो है वेटेज लिए हुए है और साथ साथ स्टूडेंट फ्रेंडली भी है। स्टूडेंट फ्रेंडली के साथ साथ क्यों स्टूडेंट फ्रेंडली है, एक बार इसके फंडामेंटल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो उन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करने में मजा आएगा। आप एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स से। आप जो दूर भागते थे मैथमेटिक्स से, उससे दूर नहीं भागेंगे। तो आज हम डिफरेंट टॉपिक्स में जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट आपने देख लिया स्क्रीन पर, ये आपका स्क्रीन पर आपके सेव्ड रहेगा। रिकॉर्डिंग जितनी भी है आप आपके अकाउंट में सेव्ड रहेगी, नेक्स्ट डे आप इसको देख सकते हैं। तो इसको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसमें आप देख रहे हो कि जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में 4 पॉइंट्स आएंगे और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन या में डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ के इसको एनालाइज करो कि कितने पार्ट्स हमें दिए हुए हैं और किन किन क्वेश्चन की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 80 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं हम। आगे इंटरनल असेसमेंट का डिजाइन है। इंटरनल असेसमेंट जो है 20 मार्क्स की होगी। उस 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट में आपको पीरियोडिक टेस्ट दिए होंगे, जिसको पेन पेपर टेस्ट बोलते हैं। 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड, उसके 10 मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे, यानी 20 में से 10 मार्क्स में से आपके बेस्ट 2 और 3 कंडक्टेड सब्जेक्ट में से आपके मार्क्स जुड़ेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स एक्टिविटीज आपकी होंगी 10 मार्क्स की, जो एनसीईआरटी ने लिंक दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक्स में मैथमेटिक्स एक्टिविटीज दी हुई हैं, और उन मैथमेटिक्स एक्टिविटीज में, क्योंकि इसको सीबीएसई ने ओपन एंडेड छोड़ दिया है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज आपको नहीं करनी। उन एक्टिविटीज में से कोई 10 एक्टिविटीज आपको करनी है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, और उस प्रोजेक्ट फाइल बनाने के साथ साथ एक्टिविटीज के आपके 5 मार्क्स और इस तरह से इंटरनल असेसमेंट के नंबर आपके जुड़ते जाएंगे और 20 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। यानी 20 मार्क्स अगर आपके पास हो गए तो आप सोच सकते हैं कि 80 मार्क्स में से हमें कितने नंबर लाने हैं कि 33% मार्क्स आ जाएं, कम से कम 33%, यानी पास होना। पास होना तो कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। तो अब हमारी स्ट्रगल क्या रहेगी, हमें अच्छे नंबरों से पास होना है। पास ही केवल नहीं होना, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो इसके लिए हमारे को एनसीईआरटी की कुछ रेफरेंस बुक्स आपको दी गई हैं, प्रेस्क्राइब बुक्स। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की 11th की एनसीईआरटी पब्लिकेशन, जैसे 12th की है पब्लिकेशन। ये जो पब्लिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए।
जब तक आपके पास ये बुक्स नहीं होंगी, जैसे लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक जाएंगे, लिंक पर जाकर एनसीईआरटी के लिंक से आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। अभी असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई ने एक नया पैटर्न शुरू किया है। 2019 में आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते थे और डिफरेंट केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन भी होते थे। अब 2020-21 से कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं 20%। यानी जो नेक्स्ट है स्लाइड, आपसे इसके पास चल जाएगा, लेटेस्ट चेंजेस जो सीबीएसई ने जो किए हैं उसमें 2019 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे आपके 20%, 25% का मतलब 20 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपका ऑब्जेक्टिव आता था, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते थे। ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू होते थे। एमसीक्यू क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें चॉइसेस दी होती हैं, 1 2 3 4 चॉइसेस होंगी, या उनमें से चॉइसेस में से आपको क्वेश्चन करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ वन वर्ड का क्वेश्चन होगा। वो आपको 20 क्वेश्चन आते थे और हर एक क्वेश्चन में आपको 20 अटेम्प्ट करने में किसी 3 क्वेश्चंस में सीबीएसई ने आपको चॉइस भी दे दी थी कि ताकि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो चॉइसेस वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन आपका ठीक होगा वो आपको जज कर लिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट जो है, अब जो मॉडिफाइड स्कीम है 2020-21 की सीबीएसई की आई है, उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पैटर्न क्या चेंज हो रहा है कि अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपके टाइम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यू वो 20% कर दिए गए हैं। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों कि 80 क्वेश्चन, तो 80 मार्क्स का टोटल पेपर है आपका 80 मार्क्स का, आउट ऑफ 80 मार्क्स 16 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यानी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, वन लाइन या वन वर्ड आंसर भी होंगे। यानी उनको लिमिटेड स्पेस में आपने लिखना है, वन वर्ड इज एनफ। यानी सॉल्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सीबीएसई साइड। आप उसको वन वर्ड में भी अगर रिप्लाई देंगे, बट वो अगर आपका आंसर ठीक है तो यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंगली। आगे जो है, इसमें एक चीज और नई इंट्रोड्यूस की है सीबीएसई ने, केस बेस्ड स्टडीज। केस बेस्ड स्टडीज में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपके 10% जो है वो आपके केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन होंगे जो आपने सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। और उसके बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो तो आपके होंगे ही होंगे, जिसमें 10% इंटीग्रेटेड वेटेज जो है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन की 10% है। 10% का मतलब आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड स्टडी वाला आएगा। यानी आउट ऑफ 80 8 मार्क्स ये हो गए, 16 मार्क्स ये हो गए, 16 और 8 24 नंबर का ये पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड स्टडीज पर होगा। और बाकी जो बचे हुए मार्क्स हैं उन पर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। रेफरेंस के लिए आपको बता दें कि पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम किस टाइप की होगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट क्यूब रूट ऑफ 1 इज z, दैट इज 1 का क्यूब रूट इज इक्वल टू z। ये एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। ऐसा ही जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए। आपको टाइम टू टाइम सीबीएसई की गाइडलाइंस आती रहेंगी, सीबीएसई सैंपल पेपर भी निकालेगी और अपना ब्लूप्रिंट भी निकालेगी। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अवगत कराते रहेगा। नेक्स्ट टाइम में आपके सिलेबस में भी आपको उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सीबीएसई की जो जो गाइडलाइंस आएंगी आपके स्कूल्स में, आपके प्रिंसिपल्स तक, आपके टीचर्स तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। ये एक एग्जांपल है, एक रेफरेंस के लिए कि इस टाइप का केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, आप इसको स्टडी कर लें। अभी मैं इसको क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि 11th क्लास का क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस जो आएंगे सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से, जो सैंपल पेपर्स आएंगे हमारे पास, जो उसके हिसाब से फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक मैट्रिसेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टूडेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसके कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए, फंडामेंटल कंसेप्ट, छोटे छोटे एलिमेंट्री कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ एंजॉय करेंगे, एंजॉय करने के साथ साथ अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि ये वेटेज वाला चैप्टर है। 10 मार्क्स की वेटेज आपके हाथ में है। अगर आपको बेसिक इसकी क्लियर हो गई, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो ही आप इसके 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में, वो कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था, इसमें मैट्रिसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले
आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस भी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, और डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशंस वो बनती हैं, वो आप जानते हैं उसके बारे में। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स की है, अगर मान लो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट हमारे पास अलजेब्रिक मेथड होते थे, जिसमें इक्वेटिंग मतलब कॉफिशिएंट, इक्वल कॉफिशिएंट करके, एडिशन करके, और आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर लेते थे। ये तो है दो वेरिएबल्स तक। जब आपकी इक्वेशन आ जाती है 3 वेरिएबल्स तक, तो भी आप कोई ना कोई प्रिंसिपल लगा के, कोई ना कोई थ्योरी लगा के आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आपके वेरिएबल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जब आपके वेरिएबल्स 2, 3, 4, 5 अनगिनत यानी 100,000 तक के वेरिएबल अगर आपके आ जाएंगे, तो उस केस में आपने उनके वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है। उन दिक्कतों का सामना करने के लिए गणितज्ञ या डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं मैट्रिसेस में लगे रहते हैं कि और नई नई योजनाएं बनाई जाए ताकि मैट्रिसेस की खोज हुई। उसमें मैट्रिसेस की खोज कैसे हुई, आगे मैं बताता हूँ आपको। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस के बारे में, कि मैट्रिसेस कैसे खोजा गया और क्या इसकी उपयोगिता थी। मैट्रिसेस जैसा ही आपको शब्द से ज्ञात है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ साथ इसका सिंगुलर सब्जेक्ट जो है मैट्रिक्स कहलाता है। होता क्या है मैट्रिक्स, उसको समझने के लिए कि हमें समझना है कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ा जाए, हम पढ़ते क्यों है मैट्रिसेस को, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो मैंने आपको अभी बताया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन का मतलब जो इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशन बनने से पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी एक्सप्रेशन बनती है। एक्सप्रेशन का मतलब टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। उसमें कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे x प्लस वाई, x प्लस 2, y माइनस 1, ये एक्सप्रेशन है। जब तक राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी तब तक वो इक्वेशन नहीं होगी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जिसके वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रिड्यूस करने के लिए हमारे को मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट हुई। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, एंड आल्सो टू डू द साइंटिफिक स्टडीज एंड द रिसर्च इन द डिफरेंट फील्ड, वहां पर भी मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट होती है। मैट्रिसेस कहाँ यूज होती है, और रियल वर्ल्ड डाटा यानी पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, जनसंख्या ज्ञात करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्ञात करना, यानी डेथ कितनी हो रही है उसके हिसाब से आपको ज्ञात करना। They are the best representation method for plotting surveys, यानी जो आपने सर्वे किया, उस सर्वे को प्लॉट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मैट्रिसेस की आवश्यकता होती है। एनक्रिप्शन यानी क्रिप्टोलॉजी के लिए आपको कोडिंग एंड एनकोडिंग करने के लिए, डीकोडिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हम कोड्स भेजते हैं, जब हम कोड्स भेजते हैं तो कोड्स भेजने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम उन कोड्स के लिए मैट्रिसेस का सहारा लेते हैं। आगे भी मैट्रिसेस को डिफरेंट फील्ड हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इन फील्ड्स में भी मैट्रिसेस का यूज होता है। वाइडली यूज इन द 3D गेम्स इन टू पोजीशन द ऑब्जेक्ट। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस को पढ़ना क्यों है हमें, क्योंकि आगे उपयोगिता इसकी, अगर हम आगे किसी फील्ड में जाते हैं तो मैट्रिसेस की उपयोगिता बढ़ती जाती है। विद्यासागर जी थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। जी सर। अब हम पढ़ने चाह रहे हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो हमारा अरेंजमेंट था, इक्वेशंस थी x प्लस वाई या x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को अगर हम इसके अवयवों को, इसके एलिमेंट्स को या नंबर्स को अगर हम ब्रैकेट की फॉर्म में अरेंज करते हैं, प्लेस करते हैं, यानी कुछ नंबर्स को रो में यानी हॉरिजॉन्टली प्लेस करें, कुछ को वर्टिकली प्लेस करें, तो वो बन जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर है, एरे का मतलब अरेंजमेंट, जो हमने अरेंजमेंट किया, उन नंबर्स को प्लेस करने का जो हमने अरेंजमेंट किया, सिंबल्स जो उसमें यूज किए, यानी एलिमेंट्री सिंबल्स हमने स्मॉल लेटर से उनके सिंबल्स यूज करते हैं उसके एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए, और उनको रोज या कॉलम की वाइज हमने उनको अरेंज कर दिया, वो बन जाता है मैट्रिसेस। क्योंकि इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल क्यों होगा, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी या नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स के बेस पर हमने उस मैट्रिसेस को पहचानना है। पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब जैसे मेरी आपकी पहचान है, किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, उसको किसी नाम से पहचाना जाता है, नाम से पहचानते हैं। जब हम किसी को व्यक्ति को पुकारते हैं तो किसी नाम से पुकारते हैं, वो राहुल और संजय, अजय एक्सेट्रा किसी पहचानते हैं, या उसकी कोई एबिलिटी होती है कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर,
इस तरह से उसकी पहचान होती है। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए हमने उसके ऑर्डर को देखना है, ऑर्डर जो कि राइट हैंड कॉर्नर में आपका लिखा होता है ब्रैकेट्स के फॉर्म में आगे। ये मैट्रिसेस का एक सिंबल है कि अगर मान लो किसी इक्वेशंस के एलिमेंट्स को मैं इस ढंग से प्लेस कर दूं, मान लो 6x + 10y या 5x + 3y = समथिंग, इस तरह से दो हैं, अगर एलिमेंट्स को मैं प्लेसमेंट करूं रो 1 में और रो 2 में, रो 3 में, तो ये आपका एलिमेंट बेसिस में, इसमें फर्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि 6 और 10 है, सेकंड रो में 5 3 है, थर्ड रो में 0 2 है। वो आप कॉलम वाइज देखेंगे तो 6 5 0 जो वर्टिकली प्लेस्ड एलिमेंट हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे 6 5 0, सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं 10 3 2। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी 3 रोज हैं, 3 रोज हैं तो कॉलम कितने हैं? कॉलम आप देख रहे हैं 2 कॉलम्स हैं, 6 5 0 और 10 3 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन कॉलम्स और पर बेस्ड इसकी डायमेंशन या ऑर्डर होगा 3/2। इसी तरह से हम जनरलाइज कर लेते हैं इसको। जनरलाइज करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट्स को जब हम दर्शाते हैं तो स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, और A11 यानी Aij से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको एक ये जनरल फॉर्म है मैट्रिसेस की, जनरल फॉर्म में जिसमें A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसी तरह से nth रो और फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट A1 से हम डिनोट कर देंगे। नीचे हम बढ़ेंगे कॉलम वाइज, अगर आप जाते हैं तो A11 A21 A31 और AM1। AM1 का मतलब है कि mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह से mth रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, mth रो और n कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं इस जनरलाइज फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास? m, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। तो m रोज और n कॉलम को दर्शाने के लिए राइट हैंड कॉर्नर में, जैसे आपको बताया गया है, इस राइट हैंड कॉर्नर में m क्रॉस n आपको दर्शा देना है। राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ देख रहे हैं m क्रॉस n। ये m क्रॉस n इसकी आइडेंटिटी शो करता है कि ये m/n ऑर्डर का मैट्रिसेस है। ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिसेस की। इस जनरल फॉर्म को आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे इसके फैक्ट्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी तक इस मैट्रिसेस को सॉल्व करने का सोल्यूशन, मैट्रिसेस तो बता दिया कि एक मैट्रिसेस हमने बना लिया और बनाने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना है। अब किसी भी मैट्रिक्स को निकालने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे AIG मैंने आपको बताया था, I जो है रो पोजीशन को सिग्निफाई करता है, J उसकी पोजीशन बताता है कि किस कॉलम में हुआ है मैट्रिसेस। यानी इस मैट्रिसेस को आप देखेंगे A1 2 3, दूसरी रो है हमारे पास 4 5 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 रो यानी सेकंड रो, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स, यानी 2/3 इसका ऑर्डर होगा। 2/3 ऑर्डर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये मैट्रिक्स तो बना दिया, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ये नहीं है कि इसको सॉल्व करने के बाद 1 2 3 4 5 6 का सॉल्यूशन अगर हम सॉल्व करेंगे = 5 समथिंग आ जाएगा। उसको डिराइव करने के लिए भी आगे साइंटिस्ट ने नई नई योजना बनाई, यानी डिटरमिनेंट का आगे सारा लिया, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें। अब तक जो मैंने आपको बताया आपने अंडरस्टैंड किया? मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूं, इसमें आप बताइए कि कितने लोगों को अब तक समझ में आ गया जो मैंने बताया। ठीक है, 85% तक पीपल समझ गए हैं, और 15% जो है एक बार दोबारा वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आते जाएंगे फैक्ट्स। और आगे हम बढ़ते हैं। ये वीडियोस जो हैं आपके एस्पिरेशन अकाउंट में सेव्ड हैं। जब भी आपको दिक्कत आएगी, आज जो वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग है जितनी भी, वो कल आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप इसको खोल के दोबारा डिस्कस भी कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करने के बाद फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है कि आप इससे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे, आगे हम लिंक्स आपको शेयर कर देंगे। उस लिंक्स पर आप अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम होंगी उन कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपका दे देंगे। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले आपने वीडियो को गो थ्रू करना है कि वीडियोस जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर आपका पढ़ाता है उसके वीडियोस को आपने गो थ्रू करना है। फॉर इंस्टेंस एक आपको एग्जांपल देता हूं। राधा with her 2 friends Sita and Gita went to a grocery store and bought
एप्पल्स, यानी राधा ने 10 एप्पल्स लिए और 20 मैंगोस लिए, सीता ने 20 एप्पल लिए और 30 मैंगो लिए, गीता ने 30 एप्पल लिए और 40 मैंगो लिए। ये जो आपने टेबल देख रहे हैं सामने, एप्पल्स और मैंगोस, इसमें आप देख रहे हैं कि ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, इसमें रोज और कॉलम कितने दिख रहे हैं आपको। राधा, सीता और गीता की वे में अगर आप देखेंगे तो 3 रोज आपकी आ गई और 2 कॉलम्स आ गई। इसको अगर मैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट की फॉर्म में अगर इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो इसमें आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसी होगी इसकी, 10 20 20 30 30 40। इसको ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं, यानी अरेंजमेंट जो भी होगा मैट्रिसेस का, मतलब किसी भी ब्रैकेट में अगर हम एलिमेंट्स को प्लेस करें यानी उनको अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। आप इसको रेक्टेंगुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख रहे हैं इक्वल नहीं है। फर्स्ट रो में एलिमेंट है 10 और 20, सेकंड रो में एलिमेंट है 20 30, थर्ड रो में 30 40। इसमें देख रहे हैं आप, ये थर्ड रो का एलिमेंट को सिग्निफाई कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली प्लेस एलिमेंट है वो रो कहलाती है, आपको बताया था अभी। सेकंड रो में 20 से 30 तक, थर्ड रो में 30 40, थर्ड रो आ गई। इस तरह से कॉलम के एलिमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, 10 20 30 20 30 40, ये कॉलम के एलिमेंट है। इस तरह से आपने टेबुलर फॉर्म में उसको आपने अरेंज कर लेना है। अब वही सेम चीज सेकंड फॉर्म में अगर हम अरेंज करना चाहें तो 3 रोज आपने बनाई थी, राधा, सीता और गीता को एप्पल और मैंगोस को अगर हम लेके चलते हैं तो इसको प्रेजेंटेशन के लिए आगे मैट्रिक्स नोटेशन क्या आएगी। यही चीज आप देखोगे, इन्हीं को रोज जो है उनको कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को आप रोज बना देंगे, यानी रोज बन जाएंगी 2 10 20 30 और 20 30 40। इस तरह से मैट्रिक्स नोटेशन में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे नोटेशन है भी मैट्रिक्स जिसमें आपने नंबर्स को प्लेस कर दिया, एलिमेंट्स को आपने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए जो आपने एलिमेंट प्लेस किए हैं उनको स्मॉल लेटर से दर्शाना है, जैसे आपको बता दिया मैंने। और जो भी मैट्रिसेस है या मैट्रिक्स है जो भी, उसको डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट A B C D कोई भी यूज कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर से उसको हमने डिनोट करना है। अब इसमें आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, रोज इनटू कॉलम। रोज इनटू कॉलम का मतलब उनको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ये रोज इनटू कॉलम को दिखाने के लिए 3/2 2/3 ये दिखाता है कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर दिखाने के लिए, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, एक फर्स्ट रो में 2 - 1 है, सेकंड रो में 3 4 है, तो रोज हो गई आपकी 2 और कॉलम कितने हो गए 2। फर्स्ट कॉलम ये हो गया और सेकंड कॉलम हो गया -1 4, यानी 2 रोज 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमने सिग्निफाई किया कि इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/2। इस तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट रो के एलिमेंट आप देख रहे हैं 1 4 4 4 5 6, ये सेकंड रो के एलिमेंट है। 3 कॉलम्स हैं, तीन कॉलम्स हैं आपके, और 3 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम 1 4 है, सेकंड कॉलम 4 5 है, फिर 4 6 है। उसमें आप देख रहे हैं कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 से आप क्या पहचानेंगे, जैसे मान लो 2 × 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 × 2 = 4। ये शो करता है कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है। 2/3 = 6, इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। वही एग्जांपल जो पिछला था, अभी आपको बताया था कि 10 20 30 वाले को, राधा गीता वाले को अगर हम इस ढंग से अरेंजमेंट करेंगे तो कंटिन्यूड पार्ट है उसका। आगे आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स की पहचान कैसे करनी है हमने। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि ये 3/3 मैट्रिक्स फर्स्ट दिखा रहा है, 3/3 मैट्रिक्स, 2/4 मैट्रिक्स, 1/2 मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3 क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट रो है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड 1 2 4, ये एलिमेंट्स हैं। सेकंड रो में एलिमेंट है 4 -1 और 5। थर्ड रो के एलिमेंट है 3 3
3। यानी इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो गई। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, इसकी रोज और कॉलम इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, जब आपकी साइड्स और दोनों साइड्स इक्वल होती हैं किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में, तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या कहलाती है, आपकी स्क्वायर। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो वो कहलाती है रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल कहलाती है। अब सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि इसमें रोज कितनी है। रोज में आप देखेंगे एलिमेंट्स, देखो पहले फर्स्ट रो के हॉरिजॉन्टली प्लेस एलिमेंट है 1 1 3 -3। सेकंड रो के एलिमेंट है 0 0 3 2। तो इसमें 2 रोज हो गई, कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 2 रोज एंड 4 कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां पर लिख देंगे हम 2/4। फर्स्ट केस जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 मैट्रिक्स का मतलब, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को कहता हूं, इसका ये भी लिख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में, सीबीएसई क्वेश्चंस में या क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ना लिखकर या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m अगर वो लिख देता है जनरलाइज, तो सिंगल डिजिट से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर वो लिखता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, तो इसका मतलब उसमें m रोज हैं और m कॉलम है। जब तक रोज और कॉलम आपकी डिफरेंट नहीं होंगी तब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो बनेगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसमें रोज कितनी भी हो, चाहे एक रो हो चाहे 2 रोज हो, कितनी भी रोज हो, उसको रेक्टेंगुलर ही कहलाएगा। सेकंड थर्ड एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें आप एलिमेंट देख रहे हैं 1 और -1। 1 और -1 का मतलब फर्स्ट रो है, कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी एक रो और 2 कॉलम, यानी 1/2 का मैट्रिक्स। अब आगे देखेंगे हम, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को पहचानना कैसे है कि वेदर मैट्रिक्स इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कंप्लीट होने चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट है, सेकंड रो में -9 और 4 एलिमेंट आ रहा है, थर्ड रो में ओनली 6 है। तो क्या ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। ऑर्डर डिफाइन का मतलब रोज और कॉलम कंप्लीट होनी चाहिए, या तो रोज इनकम्प्लीट है या कॉलम इनकम्प्लीट है, वो हम देख लेंगे कि कौन सा कॉलम या कौन सा रो इनकम्प्लीट है। अगर हम इसको देखेंगे कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये कंप्लीट नहीं है, तो उसका ऑर्डर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर नहीं लिख सकते कि रोज कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 2 रोज और 2 कॉलम्स में केस में कि आप उसको मल्टीप्लाई कर देख लेंगे कि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी उस परिवार के कितने सदस्य हैं उनको पहचानना है आपने, यानी 4 उसके अवयव होंगे। सेकंड जो है मैट्रिक्स, अगर 3/4 का ऑर्डर है, 3/4 का ऑर्डर जो आपका राइट हैंडेड कॉर्नर में लिखा होगा नीचे, उस कॉर्नर से आप ये पहचानेंगे कि उसके एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4/4, यानी जिस मैट्रिक्स की 4 रोज और 4 कॉलम, यानी वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स कितने होने चाहिए टोटल, वो 16 मैट्रिक्स होने चाहिए, एंड सो ऑन। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस में 1 मार्कर में आपको पूछे जा सकते हैं कि ये कितने इसके मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, या कैसा मैट्रिक्स होगा, या कोई भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करने को आपको कहा सकता है, उसको पहचानने के लिए कहा जा सकता है कि A21 एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स में, या A11 एलिमेंट कौन सा है, उसको आपको पहचानना है। रिवर्स वे में अगर मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, 4 एलिमेंट। अब रिवर्स वे में मतलब पहले तो वो पूछ देगा, पहले तो ऑर्डर आपको दे देगा, ऑर्डर देने के बाद आपको एलिमेंट्स निकालना है, तो उन ऑर्डर को मल्टीप्लाई आपने कर देना है। सेकंड स्टेज क्या हो सकती है रिवर्सली, अगर हम कहते हैं, अगर वो कह देता है कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर किस तरह से हो सकते हैं, तो 4 के हमने फैक्टराइजेशन कर देने हैं। 4 के पॉसिबल फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं 1 into 4, 4 into 1 एंड 2 into t, यानी ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। 4 एलिमेंट्स कुछ भी हों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनमें से कुछ भी होगा, यानी 1 रो 4 कॉलम होंगे, 4 रो 1 कॉलम होगा, या 2 रो 2 कॉलम होंगे। कहने का मतलब ये है, या तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा फर्स्ट वाला, या वो सेकंड वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, या उनका अरेंजमेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। सिमिलरली
आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। 12 एलिमेंट्स अगर आपके मैट्रिक्स में हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, उस 12 के टुकड़े करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे 1 into 2, 12 into 1, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2 एंड 2 into 6। ये पॉसिबल अरेंजमेंट है हमारे पास, यानी इनको अगर मल्टीप्लाई करें इनका प्रोडक्ट जो है 12 आना चाहिए। अगर 12 के वैसे टुकड़े करता हूं तो 10 और 2 आते हैं, पर उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं करना, आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि टोटल एलिमेंट्स क्यों मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। ऑर्डर से आपने देखा था अभी पिछली स्लाइड्स में कि जब हम ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके निकल के जाते हैं। वही चीज रिवर्सिबल पॉसिबल है। जब हमने ऑर्डर से एलिमेंट निकालने के लिए जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही एलिमेंट से हमें ऑर्डर निकालने के लिए वही चीज हमने करनी है, फैक्टराइजेशन करना है कि 12 का फैक्टराइजेशन आपका 1 into 12 हो गया, दूसरा फैक्टर 12 into 1 हो गया, तीसरा हो गया 3 into 4, 4 into 3, इस तरह से एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, इस ढंग से आपने मैट्रिसेस को निकालना है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है आपको, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ ईच एलिमेंट कैन बी आइदर 1 और 2 और 3। इसमें 2 by 3 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, पिछली क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा परम्यूटेशन वगैरह में पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं कि 3 की पावर 6 यानी 2 by 3 का अगर बनाना है तो 6 हमारे पास एलिमेंट आएंगे, तो 3 की पावर 6 यानी 729 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हो जाएगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3 यानी 729 आपके एलिमेंट होंगे। इन जनरल फॉर्म में आपने निकालना है अगर मैट्रिसेस कितने होंगे, तो m जो है नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ईच पोजीशन है। अगर फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, कितने वे में मैं उसको उस पोजीशन को फिल करूंगा। और दूसरा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, आप देख रहे हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसकी प्लेसमेंट आपने देखनी है, 1 2 और 3 की प्लेसमेंट में कितने पॉसिबल वेज हैं। जनरल फॉर्म है m की पावर n पॉसिबल वेज में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है उसको निकालने के लिए कि आपकी पॉसिबल वे कितनी है। तो हमने इस टेक्निक से क्या सीखा कि मैट्रिक्स जो ऑर्डर है राइट हैंड साइड में जो दिया होता है उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई ये टेक्निक एलिमेंट्स निकालने के लिए केवल, अदरवाइज हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब तक जितना मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया है इसमें से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, ये आपको दिखाने के लिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। इस पोल में आपने बताना है अब तक कितना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो आप अपना रिस्पांस इस पे दीजिए। ऑलमोस्ट 80% जो है आप समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है इसमें आपको उसको रिवीजन करना है आपने, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जो है आपका प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे आप डिफरेंट प्रॉब्लम को समझते जाएंगे आप इसको सॉल्व करेंगे। जी सर। Kindly put a poll for just this slide. Let us see. ओके अगेन। या जस्ट इस स्लाइड को कितने लोग समझ पाए हैं उसका एक पोल डालिएगा। इस स्लाइड में कितने लोग इसको समझ पाए हैं, अपनी पोलिंग कीजिए। है 69% है सर। Would you want to reiterate quickly this slide? एक बार मैं स्लाइड को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब तक जो आपने पढ़ा बच्चों,
इसको एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा दोबारा। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को पहचानना, क्या वो मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ऑर्डर उसका डिफाइंड नहीं है, मान लो उसका ऑर्डर डिफाइंड के लिए उसके एलिमेंट्स भी होना जरूरी है। एलिमेंट्स में मान लो इनकम्प्लीट है, यहाँ पर 1 4 9 9 4 6, यहाँ पर स्पेस मिसिंग है, इट इज नॉट ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होने जरूरी है। ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, वो कैसे पहचानेंगे? जब तक राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं दिए होंगे तब तक आप उसको यहाँ पर नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप देख लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पहचान लेंगे, बट नंबर ऑफ रोज और कॉलम को ऑर्डर निकालने के लिए यहाँ पर आपको रोज और कॉलम कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 बाय 2 है तो आपको ये बता दिया था मैंने पीछे भी कि 2 बाय 2 उस ऑर्डर से आपने पहचानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 4 है तो यानी 12 एलिमेंट होंगे। अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 बाय 4 है, 4 बाय 4 जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑर्डर लिखा होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आपने कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 16, ये जज कर सकते हैं आप, एंड सो ऑन। इस ढंग से आपने पहचानना है। रिवर्स वे में आपको सीबीएसई के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, बुक्स में या पेपर्स में, रिवर्स वे में आपको एनसीईआरटी की बुक्स में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं, खाली एलिमेंट दे देगा वो उसमें, और वो पूछेगा आपसे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि 4 एलिमेंट से ऑर्डर कितने बन सकते हैं, उन 4 का एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 4 को हम फैक्टराइज करेंगे, यानी 4 के पॉसिबल फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, चाहे 4 का फैक्टराइजेशन जब आपने किया था 1 into 4, उसके पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं 4 into 1, यानी 4 रोज 1 कॉलम, और पॉसिबिलिटी क्या है 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती 4 में। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे 2 into 2 is equal to 4, 4 into 1 is equal to 4, 1 into 4 is equal to 4, तो 3 का कोई रोल नहीं है, 5 का कोई रोल नहीं है। इससे आपको पहचानना है कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा। 4 के आपने टुकड़े करने हैं, 4 की जगह अगर आपका कोई एलिमेंट डिफरेंट कर देता है, 16 कर देता है या कोई और एलिमेंट कर देता है, यानी 12 कर देता है, तो 12 के टुकड़े पॉसिबल क्या होंगे, 12 के फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 1 into 12 का मल्टीप्लिकेशन 12 आता है, 12 गुना में 1, इसका मल्टीप्लिकेशन भी 12 आता है, 3 into 4 का मल्टीप्लिकेशन भी 12 आता है, 4 into 3 का मल्टीप्लिकेशन भी 12 आता है, 2 into 6 का मल्टीप्लिकेशन भी 12 आता है, 6 into 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 12 आता है। तो यानी इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट, हमारे पॉसिबल जो है अरेंजमेंट वो कैसे होंगे, यानी कितने मैट्रिक्स का ऑर्डर बन सकता है हमारा 1 by 2, यानी जिसमें 1 रो हो और 12 कॉलम हो, या 12 रो हो और 1 कॉलम हो, या 3 रोज हो या 4 कॉलम हो, 3 रोज और 4 कॉलम, 4 रोज हो 3 कॉलम हो, ये पॉसिबल है अरेंजमेंट। और 2 into 6 का मतलब 2 रोज हो 6 कॉलम हो, 6 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। इस ढंग से हम पॉसिबल अरेंजमेंट आप उसका कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर से 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये या उसका रिवर्स दोनों फॉर्म में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर होता जाएगा। सिमिलरली हम आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स आर पॉसिबल इफ ईच एलिमेंट कैन बी आइदर 1 और 2 और 3। एक क्वेश्चन अगर आपका आ सकता है कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 2 by 3 का मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें आपने देखना है कि ये 2 by 3 मिसिंग है, इसमें कितने मैट्रिसेस इसमें पॉसिबल है। तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, उसमें जनरल प्रिंसिपल है m to the power n। m क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ईच पोजीशन, यानी ईच पोजीशन मैट्रिसेस में फर्स्ट पोजीशन 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आपको निकाल लेनी है कि 2 की निकालनी है, पहले 1 की निकालनी है, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, इस ढंग से आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आपकी निकल जाएंगी। तो m जो होगा उसकी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आएंगी ईच पोजीशन को भरने के लिए। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, जितने एलिमेंट्स हैं उसके लिए n जो आ जाएगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। मान लो 2 by 3 का एलिमेंट है तो कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। उसकी पॉसिबल वेज कितनी होंगी, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे इस टाइप के, वो पहचानने के लिए m to the power n आपको लाना है। सो ये टेक्निक है फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। बस ऑर्डर से आपने पहचानना है कि ऑर्डर से आपने केवल एलिमेंट्स ही निकालने हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं मैट्रिसेस की।
मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अगर मुझे दिया गया है एक मैट्रिक्स 2 by 2 का ऑर्डर, whose elements are given by aij is equal to I plus j, एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे aij is equal to I plus j, इससे आपने मैट्रिक्स फॉर्म करना है। मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए 2 into 2 से आपने पहचाना, मल्टीप्लाई किया, कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 गुना 2 यानी 4 एलिमेंट आने चाहिए। 4 एलिमेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या होने चाहिए, a11 a12, सेकंड रो के एलिमेंट क्या होने चाहिए, a21 a22। ये दो रोज आपने बता ली, सबसे पहले पहचान लिया कि हमारी ये दो रोज बनने वाली हैं। इन दो रोज बनाने के लिए जब हम a11 निकालेंगे तो a11 aij की पोजीशन को सिग्निफाई करता है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे। जब a11 आएगा इस स्टेटमेंट में i की जगह 1 रख देंगे और j की जगह भी 1 रख देंगे, तो पहली पोजीशन आ गई 1 + 1 = 2। सेकंड एलिमेंट निकालना है a12। a12 निकालने के लिए क्या रखेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मतलब फर्स्ट रो में i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे, i plus j आ जाएगा, 1 + 2 = 3। इस तरह से थर्ड एलिमेंट निकालना है आपने सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी a21। a21 जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, यानी i की जगह 2 रखेंगे और j की जगह आपको 1 रखना है। इस तरह से a22 निकाल लेंगे, a22 2 + 2 = 4। ये एलिमेंट्स निकालने के बाद उसको ब्रैकेट में उसको हम प्लेस कर देंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आपके इस ढंग से प्लेस होंगे और ये मैट्रिक्स फॉर्म होगा। इसी तरह से आपको एक अलग एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें aij = थोड़ा सा और चेंज हो गया, i + 2j स्टेटमेंट हो जाती है अगर मान लो, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपको 2 by 3। 2 by 3 का ऑर्डर से पहचानना है आपको कि 2 × 3, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए उस मैट्रिक्स के परिवार में, 2 × 3 = 6, यानी 6 एलिमेंट आने चाहिए। 6 एलिमेंट में 2 ये पहचानता है, 2 बताता है, सिग्निफाई करता है कि इसकी रोज कितनी होंगी, 2 रोज होंगी, यानी फर्स्ट रो होगी। 3 ये बताता है कि 3 उसका जो कॉलम होंगे, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब ये जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 उनके उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि a11 निकालने के लिए i = 1 और j = 1 इस स्टेटमेंट में आपने रख देना है। यहाँ पर रखना है aij = I + 2j, यहाँ पर आपने उनकी वैल्यूज रखनी है और a11 आपका निकल जाएगा। a11 निकल गया आपका 1 और 2 × 1 = 3। इसी तरह से a12 = 1 + 2 × 2, 1 + 2 × 2, 2 का मतलब j की वैल्यू 2 है आपकी, a12 का मतलब j की 2, तो यहाँ रखा, ये 5 आ गया। a13 का मतलब यहाँ पर रखेंगे i = 1 और j की जगह 3, 1 + 2 × 3 = 7। a21 का मतलब i की जगह 2 रखा और j की जगह 1 रखा, तो i की जगह 2, j की जगह 1, 2 + 2 × 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 + 2 4। a22 में आपने देखा इस तरह से सारे एलिमेंट a23 आपने निकालेंगे और उसके बाद ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये आपकी रिक्वायरमेंट आएगी 3 5 7 और 4 6 8। ये आपका जो भी क्वेश्चन अगर आता है आपका 1 मार्कर के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, जो बड़ा स्कोरिंग है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप इसके एनसीईआरटी के भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक 3 by 2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसके एलिमेंट aij = 1 by 2 i - 3j। ये डिटरमिनेंट इसमें फॉर्म मॉड्यूलस फॉर्म में दिया हुआ है, i - 3j फॉर्म में। अब इसमें इसको सबसे पहले आपने पहचानना है कि 3 by 2 ऑर्डर है, 3 by 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 3 दूनी 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट में रोज कितनी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फर्स्ट सिग्निफाई करता है रो को और सेकंड एलिमेंट बताता है ऑर्डर में, एन जो है वो कॉलम को बताता है कि 3 रोज और 2 कॉलम। 3 रोज और 2 कॉलम में, यानी 3 रोज का मतलब फर्स्ट रो में a11 a12 इस ढंग से मैट्रिक्स आएगा, इस सेकंड रो में a21 a22 a31 a32 आएगा। इन जनरल ये मैट्रिक्स 3 by 2 का इस ढंग से निकाल लेंगे। और aij का एक हमें स्टैंडर्ड ये हमारे को दिया हुआ है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में a11 निकालने के लिए जैसे आपको पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था, 1 i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे तो a11 आपका मिल जाएगा। a11 का मतलब i = 1 2 3 इस तरह से रखते जाएंगे। स्टेटमेंट में j = 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा आपका a11 = 1 by 2, i की जगह 1 रखा और j की जगह
फिर 1 रखा, 1 माइनस 3 इंटू 1 मॉड्यूलस फॉर्म में आया इज इक्वल टू 1। यानी ये कितना बचा, आपका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा इसका डिफरेंस, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का मतलब 2, 2 बचा, 2 का मॉड्यूलस माइनस 2 बचा, माइनस 2 का मॉड्यूलस 2 आ जाएगा, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह से A12 रखेंगे तो इसमें i की जगह 1 रखा और j की जगह 2 रखा, 3 इंटू 2, इनका डिफरेंस लेंगे, 1 माइनस 3 टू जा 6, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, -5 का मॉड्यूलस लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 5/2, सेकंड एलिमेंट आपका आ जाएगा। इस तरह से A21 सेकंड रो का एलिमेंट निकालना है आपने, A21 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस i की जगह 2 रखा और j की जगह 1 रखा, 2 1 का मतलब ये सेकंड पोजीशन आपका j को दिखाता है, तो 2 की जगह 1 रखा तो ये आया 2 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 2 माइनस 3 हो गया -1, -1 का मॉड्यूलस में पॉजिटिव 1 आया, 1/2 इसका एलिमेंट आ गया। A22 का मतलब A22 का मतलब 1/2, j की जगह और i की जगह दोनों की जगह आपने 2 रख देना है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, -2, -6 प्लस 2 यानी -4, -4 का मॉड्यूलस आया +4, +4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से A31 आया और आगे बढ़ते जाएंगे और इस ढंग से आप सारे एलिमेंट्स आपने निकाल लेने हैं और निकालने के बाद इसको यहाँ गिवन मैट्रिक्स में आपने प्लेस कर देना है, तो हमारा ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपको पोल्स करता हूँ, इस तक यहाँ तक एक एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपको कितनी क्लियर हुई है ये आपको बताना है। कितने बच्चे एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन में ट्रेंड हो गए हैं? ये स्लाइड 1 मिनट के लिए रखिएगा, जी लेट सर। पीपल सी। You can give them a homework to create a 2/3 matrix by themselves using the same formula. या 91% तक आपका क्लियर है इस टाइम। अब धीरे धीरे अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ये बच्चे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपने ये पढ़ा, इस एग्जांपल पर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी दी हुई है 3.1 एक्सरसाइज में आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने फ्रेम करने हैं। मान लो ये स्टेटमेंट है aij इज इक्वल टू 1/2, ये स्टेटमेंट है, इसी तरह से अपनी स्टेटमेंट आपने फॉर्म कर लेनी है, कोई भी i + 2j, i + 5j और 5/2 का मैट्रिक्स बनाना है। 10 क्वेश्चन आपने फ्रेम कर लेने हैं। अपने 10 क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर्स का, 5/6 ऑर्डर का, डिफरेंट ऑर्डर्स है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और इसको आप जानेंगे और पहचानेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी और आप देखेंगे इसमें आपको बहुत एंजॉयमेंट आएगा, यानी आप एंजॉय करेंगे। इसी टाइप के कई एग्जाम्पल आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट रेफरेंस बुक में से भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो है ये मधुलिका मैडम को फॉरवर्ड करता हूं। अब आपको मधुलिका मैडम शेयर करेंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मधुलिका मैडम। मधुलिका मैडम। I'm starting. हाँ, स्टार्ट कीजिए। Okay, students.
अभी तक विद्यासागर सर ने जितना समझाया है, मैं उसको एक छोटा सा ब्रीफ करके आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ लेके जाऊंगी। ये जनरल मैट्रिक्स अब मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है कि व्हाट डज m क्रॉस n मीन्स एंड व्हाट डज दिस A11 मीन्स। बिकॉज अगर ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझना बहुत ही आसान है। सो आई रिपीट, दिस मीन्स order of a matrix having m rows and columns, and any element which is represented like A12, this means that it is the element at the intersection of first row and second column. Now I will introduce you the types of matrix. अभी तक आपने सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स, बट बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्सेस होते हैं और उसमें सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में देयर शुड बी सम स्पेसिफिकेशन अबाउट कॉलम एंड मैट्रिक्स। अब जब सर ने बताया है कि केस स्टडीज के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं, तो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पोर्शन को भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि पहले वो आपको एक कट एंड पेस्ट कोई कॉलम देगा और उसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछेगा। सो व्हाट इज दिस कॉलम मैट्रिक्स? हमें पता है, अब आपको कॉलम मैट्रिक्स समझने से पहले आप इस मैट्रिसेस को थोड़ा सा स्टडी करिए। सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। सो आई रिवाइज, 0, 3, -1, 1/2, they are the elements, and it has 1, 2, 3 and 4 row, which is simulating here 4 row. But study this. This is only one. You can see in this matrix we have only one column. So a matrix having only one column is known as column matrix. We can generalize it with saying m cross n. M cross 1 means it can have 3 into 1, 5 into 1, 1 into 1, 2 into 1. But this number should be 1 always. So this is the generalized statement for column of the matrix. Similarly, when we study this row matrix, focus on matrix B. What is the difference between A and B? Here you can see that we have 1, 2, 3, 4 columns, but I have only one row. So focus on this now. This means 1 row and 4 columns. So in case of a row matrix, we will have only one here, but this number can be any number. So this is the generalized form of row matrix, that is 1 into n. So please be clear about these two concepts. M cross 1 means 1 column, so it is a column matrix. 1 cross n means 1 row, so it is a row matrix. Square matrix, sir has already covered this, but I want to read this concept in a mathematical manner. Square matrix means number of rows are always equal to number of columns. This m is equal to n. N is number of rows and n is number of columns. So for a square matrix, this is the required condition that m should be equal to n. So focus on this. In general, Aij is m cross m. What does this mean? It can be m cross m. It can be n cross n, because in square matrix, m and n are the same number. So what about this matrix? 3 rows, 3 columns. So the order of this matrix can be written as 3 cross 3. But it is a notation used generally for a square matrix, that it is not written like this, but in question it is written like square matrix of order 3. Sir has also explained this. Whenever one number is given in the question, please don't get confused. Focus on this, that ये mention होगा ही कि वो square matrix है. अगर वो square matrix है और order में एक number दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की बात कर रहा है. सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, एनी नंबर,
but it should be written as, it is known as square matrix of order n or square matrix of order m. Now, before going to the another concept of diagonal matrix, I would like to concentrate on this word, diagonal. You must be knowing from your geometrical knowledge that if a square, focus on these diagonal elements. In a square, there are elements 1, 4, and 6. These three elements which are present diagonally like this are known as diagonal elements. Now, if I ask a question, so what is the specification of these numbers? Can you find out? Can you identify what is this number from your previous knowledge? This is A11. This is A22. This is A33. So what is common between them? These three elements have I and J as same. So when the I and J are same, they are called, these entries are called diagonal elements. So 1, 4, 6, A11, A22, ANN. They are the diagonal elements, and the remaining elements, they are known as non-diagonal elements. I hope this is clear. I'm giving you a silent pause to understand this diagonal concept, because this is the basic of next slide. So I repeat, if I and J are same, they are called diagonal elements. And if I and J are not same, for example, this -3, what is the position of this element? First row, second column. So this is A12. So I and J are not equal. So they are non-diagonal elements. Now comes the diagonal and scalar matrix. Don't read this concept first. First focus on these three examples. A is equal to 4, B is equal to this, and C. First of all, I would like to concentrate on this matrix. Again, it is a square matrix, 3 cross 3. But what special things you are focusing on these two matrices? Yes, can you identify some specificity? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इन दोनों में क्या स्पेशल है? Okay, let me tell you that focus on diagonal elements. Then focus on non-diagonal elements. Now you can see that we have only numbers at the diagonal positions like this, but the non-diagonal elements are all 0. So this comes the definition of diagonal matrix. If we have elements present only at the diagonal positions, only where I is equal to J, and remaining elements are 0, this matrix is known as diagonal matrix. So now I read this. Now you can understand. It should be square matrix. That is very, very important, because diagonal matrix is a special case of square matrix. These type of questions come in MCQ types. That can diagonal matrix be rectangular matrix, or can square matrix be diagonal matrix? So if your concept is clear, a rectangular matrix cannot have diagonal matrix. Diagonal matrix has to be square matrix. So a square matrix defined like this is a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix is said to be diagonal matrix if Bij is equal to 0. When I is, this is a very important concept to be understood. Please focus on this. Bij is equal to 0 when I is not equal to j. मैंने आपको बताया, जब I is equal to not j की बात करता है NCERT, इसका मतलब है कि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है. तो वो कह रहा है कि सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं. ठीक है, तो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों ही डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिसेस हैं तीनों ही. क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस है इनका ऑर्डर का. ये ऑर्डर क्या है? 1, ये ऑर्डर है 2, ये ऑर्डर है 3. Why am I saying it is order 1, 2, 3? Because I've told you in case of square matrix,
we just say that it is a matrix of one order. So this is a diagonal matrix of 2, diagonal matrix of order 3. Now focus on these two C's. आप कहेंगे कि ये भी तो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है, फिर इसको स्पेसिफिकली स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहा जा रहा है? प्लीज concentrate on these two matrices, C of the diagonal matrix, C of the scalar matrix. Non-diagonal elements are 0, non-diagonal elements are 0. So this is same. ये उसी तरह से है जब हम बचपन में खेलते थे कि दो पिक्चर्स में से क्या डिफरेंस है और क्या सेम है, फाइंड आउट करो. दिस इज द सेम थिंग. क्या पता चल रहा है आपको? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स इसमें तो 1.1, 2 और 3 है, लेकिन इसमें सेम है. So this is a special case of diagonal matrix. Again an MCQ question. That diagonal matrix का special form क्या है? Scalar matrix. Any diagonal matrix with the specific condition that all its diagonal elements are same or a constant, then it is called a scalar matrix. Is that clear, beta? So I repeat this. Bij is equal to 0 when I is not equal to j. I is not equal to j means non-diagonal element. वो तो इसमें 0 है, वो स्केलार में भी 0 थे, वो डायगोनल में भी 0 थे, वो स्केलार में भी 0 है. लेकिन केस when I is equal to j, ये इक्वल जब हो जाते हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं. उस डायगोनल एलिमेंट में वो सारे एलिमेंट सेम हैं. That is why it is called a scalar matrix, and scalar matrix is a special case of diagonal matrix. इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि क्या डायगोनल एलिमेंट स्केलार हो सकता है, क्या एवरी स्केलार मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है? सो थिंक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि अब आपके लिए एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चंस क्रैम करना इज नॉट सफिशिएंट. सीबीएसई इज लुकिंग फॉर अ कंसेप्ट बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस. सो रीड, बच्चे क्या करते हैं, ये डेफिनेशंस रीड ही नहीं करते हैं, बट वो इन्हीं के साथ खेलता है एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, इन्हीं के साथ. सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, diagonal matrix of order 3, and diagonal elements of order 3. Now this is a very interesting and easy concept, identity matrix. As your name suggests, numbers में भी आपने पढ़ा है, identity means 1. If all the diagonal elements of the matrix are 1, so it is an identity matrix. Rest of them should be 0. Now मुझे लगता है अब आपको ये भाषा समझ में आने लग गई है मैट्रिसेस की. Now you are in the world of matrices. So can you identify or can you explain to yourself that what does this mean? This means element is 1 when I is equal to j, that is diagonal elements are 1, but when I non-diagonal elements are all 0. Again, order. This is a very, very important concept to solve the operations or in the algebra of matrices. अगर वो आपको कहता है algebra of matrices में कि इस सम को identity matrix के equal करो, तो आपको जो already given matrix है उसका order identify करना है. अगर वो given matrix आपका 2x2 matrix है तो आपको इसके साथ equate करना है, identity matrix of 2 के साथ. अगर आपको given matrix 3x3 है, to find the values in equality of the matrices आपको उसको ऑर्डर 3 के मैट्रिसेस से इक्वेट करना है. एंड द लास्ट इज जीरो मैट्रिक्स. अगेन व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर 0, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. आप पूछेंगे इसकी क्या जरूरत है? ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. 0 होने के बावजूद भी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप simultaneous equations, algebra of the matrices, equations, equality of the matrices, इसके बिना नहीं चला सकते. Only thing is you have to remember and apply it that order of the matrix. अगर आपका क्वेश्चन given क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वेट करना है वो जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स आपको उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते.
So I'm giving a pause and a summary of all the matrices which I have discussed, so that you can read this in a minute and you can identify or you can play with the beauty of matrices and the language of the matrix. Now I think you can understand. So I'm giving 2-3 minute pause to read this summary. So I will repeat the summary so that you can understand all the concept. Again, a rectangular array is called matrix. M rows, n columns, order is m cross n. M cross 1 means column matrix because column is 1. 1 cross n is a row matrix because row is 1. M cross n is a square matrix if they are equal. Diagonal matrix, when diagonal elements are, non-diagonal elements are 0. Scalar matrix, when non-diagonal elements are 0, but diagonal element is a constant. Again, identity matrix, all elements are 1, non-diagonal elements are 0. And zero matrix, all elements are 0. So these are all types of matrices, and I hope that you are clear with all type of matrices. Now I will share the slide with Vidyasagar sir to continue the questions. Vidyasagar sir. Stop sharing. करो. Yes, I've stopped, sir. Just stop it. Sir, conduct the poll for me if they have understood this. You just conduct yourself. Okay, sir. I think it's okay. It's okay. And polling, and you can continue, sir. हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स. अभी आपके इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं. इस मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं कि C इज इक्वल टू -1, -2, -4, 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट है. सेकंड रो के एलिमेंट आप देख पा रहे हैं 5, 3, 7, -2, 2, 3, -4, 5. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स? अगर आपको पहचानना है, ये एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में. 2 मिनट लीजिए. इसके कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? इनमें से आपको पहचानना है. इसी टाइप का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आपको आएगा 1 नंबर में. 4 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 4 कॉलम्स, 2 रोज 4 कॉलम्स, या नन ऑफ दीज. आप इसमें देख रहे हैं इसमें रोज कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. कॉलम गिनिए. वर्टिकल लाइंस, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. इसमें देख रहे हैं आप कि कितनी रोज होगी?
3 रोज और 4 कॉलम, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3/4। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जाता है कि A24 एलिमेंट क्या होगा, ऊपर जो एलिमेंट दिया हुआ है एलिमेंट A11 भी आपको पता है, अभी मैम ने आपको आइडेंटिफाई भी करवाया था मधुलिका मैम ने कि A11, A12, A13 इस तरह से एलिमेंट आइडेंटिफाई किए थे, A11, A12, A13, A14। अब A21 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या होगा इसमें? सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, जिस रो और उस कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं तो हम सेकंड रो पे जाते हैं, सेकंड रो पे जाकर फर्स्ट रो को भूल जाते हैं और फोर्थ कॉलम में आते हैं जहां पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं? ये -2 पर कर रही हैं। यानी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा? -2। यहां से -2 को आपने क्लिक कर देना है, यानी आंसर आपकी चॉइस हो जाएगी 2। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एग्जांपल 4 इक्वलिटी नहीं हुआ ना अभी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी तक मैडम ने कई चीजें आपको बताई हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैडम ने आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस भी करा दिया है। तो अब दो मैट्रिसेस इक्वल कैसे होंगे? दो मैट्रिसेस A और B are said to be equal when they are of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of matrix B। यानी अगर उनका ऑर्डर, सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या उन मैट्रिसेस का ये ऑर्डर जो राइट हैंड साइड बॉटम में लिखा हुआ है ये ऑर्डर सेम है। अगर ये ऑर्डर सेम है तब और चीज चेक करेंगे कि सिमिलरिटी में फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये बराबर होना चाहिए, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और मैट्रिक्स बी की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये भी बराबर होना चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका सेकंड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका भी सेकंड एलिमेंट लेंगे। इस ढंग से हम उन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ये एक कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए कि दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की कंडीशन है। यानी एक डेफिनेशन होगी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? अगर आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चंस में, एग्जांपल में भी अगर आपको दे देता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आप पहचानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कि सर ने बताया था कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे जाएंगे। अगर इसका एलिमेंट A12 2 के बराबर दिया हुआ है, A12 की जगह 2 दिया हुआ है और यहाँ पर x दिया हुआ है और आपको किसी क्वेश्चन में एग्जांपल में ये पूछा जाता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं और उन दो इक्वल मैट्रिक्स में से x का मान क्या होगा, इसी तरह से B21 को y दे देगा या यहाँ पर कोई न्यूमरिक डाल देगा। न्यूमरिक डालने के बाद आपको पहचानने को कहेगा कि इसका ये एलिमेंट निकालो, 1 2 निकालो, 2 2 निकालो, कोई मिसिंग नंबर जो नहीं है, जो वेरिएबल मिसिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कहेगा। तो ये फाइंड आउट आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम होंगे और एलिमेंट्स दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होंगे। ये तो था इक्वालिटी के बारे में। मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल 4। यहां पर मैंने आपको पीछे बताया था कि अननोन क्वांटिटीज आपको दे देते हैं। अननोन क्वांटिटीज देने के बाद आपको ये फाइंड आउट करने को कहते हैं कि इनमें से x निकालो, y निकालो, z निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c, x, y, z। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं, बीच में इक्वालिटी दी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी गिवन है। अगर लिखा नहीं हुआ तो इसी से आप पहचानेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट,
यानी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स ए का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी का, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल ऑलरेडी है, इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस आपकी फॉर्म होंगी। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका मेन मोटिव है, हमारे को आइडेंटिफाई करने हैं अननोन क्वांटिटीज। ये चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब अननोन क्वांटिटीज दी होती हैं या दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और उसमें कई कंडीशन दी होंगी, कुछ कांस्टेंट्स दिए होंगे, तो उनको हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे एज द गिवन मैट्रिक्स आर गिवन टू बी इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, ये कंडीशन होती है इक्वालिटी की। कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंडीशन इक्वेट कर रहे हैं कि हमें पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑलरेडी गिवन है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को 0 के बराबर रख देंगे, यानी x + 3 0 के बराबर हो जाएगा। उसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट उसके बराबर रख देंगे मैट्रिक्स बी के। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर रख देंगे, 2y - 7 = 3y - 2। इस तरह से आप देखेंगे इक्वेशंस फॉर्म होंगी। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे a, b, c और x, y, z के लिए। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपने अपने पेन पेंसिल लेके बैठेंगे और सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू आएगी -2, b की वैल्यू आएगी -7, c की वैल्यू आएगी -1 और x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यू भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी डाल सकता है और शॉर्ट आंसर में भी डाल सकता है कि इसमें से सारे ना पूछकर वो x की वैल्यू पूछ ले या y की वैल्यू पूछ ले या b की वैल्यू पूछ ले या c की वैल्यू पूछ ले। जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनमें से कुछ भी एक दो वैल्यूज पूछ लेगा, ताकि वो आपके एक नंबर के क्वेश्चंस में, वन लाइन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी में भी इस क्वेश्चन को डाल सकता है। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो हम आगे एक बार फिर रिपीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c and d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर, ये होना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बाय इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स हमने देखा कि 2a + b को 4 के बराबर इक्वेट कर दिया, 5c - d को हमने 11 के बराबर इक्वेट कर दिया, a - 2b को 3 के बराबर इक्वेट कर दिया, -3 के बराबर। इसी तरह से हमने इन इक्वेशन को सॉल्व कर a, b, c और d की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज के 3.1 के क्वेश्चंस आपका होमवर्क भी है और आपने इसको सॉल्व भी करना है घर पर। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, कोई भी एक क्वेश्चन, अभी तक आपने इसका ऑर्डर निकालने के लिए, मान लो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके एलिमेंट्स देख लेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी रोज हैं, रोज कितनी हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 3 रोज 4 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अगर निकालने को कहता है तो निकाल लेंगे, अदरवाइज आप काउंट कर लेंगे। 3/4 है तो 12 एलिमेंट होंगे, यानी 4 इस रो में है, 4 इस रो में है, 4 इस रो में है, 3 रोज हो गई, यानी 12 एलिमेंट्स हो गए। राइट द एलिमेंट्स A13 का मतलब, अगर में कंडीशन में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, कोई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम का एलिमेंट आपसे पूछ लेगा। 1 मार्कर क्वेश्चन में A13 निकालो, A21 निकालो, A33 निकालो। अब आपको A33 निकालना है। A33 का मतलब क्या होता है, A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो का मतलब फर्स्ट सेकंड रो को हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम पे और थर्ड रो में जहां आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी -5। -5 का मतलब A33 की वैल्यू -5 आ जाएगी। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन ए मैट्रिक्स
24 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर हम पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। यानी 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो 24 को ब्रेकअप कर लेंगे। तो 24 को ब्रेकअप करने के लिए कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी 1 into 24, 24 into 1, और क्या होगा 12 into 2, 2 into 12। इस तरह से पॉसिबल अरेंजमेंट आपने देखने हैं और वो पॉसिबल ऑर्डर्स आपने निकालने हैं कि कितने इसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ये क्वेश्चंस आपने घर पर सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने पर इसमें से जो एक्सरसाइज में आपको मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जैसे AIG वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, 3/4 का मैट्रिक्स फॉर्म करना या 4/3 का मैट्रिक्स फॉर्म करना। आपको सबसे पहले पहचानना है कि 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है तो 4 3 12 एलिमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। 12 एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे कि 3 रोज बना लो और 4 कॉलम बना लो। फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 रो में, 4 कॉलम का मतलब A11, A12, A13, A14। इस तरह से रोज और कॉलम्स के एलिमेंट आप पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद इस पर I इज इक्वल टू जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है वो रखकर आप एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इन क्वेश्चंस को, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क करने के बाद आपने इसके होमवर्क में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप शेयर करेंगे। शेयर करने के साथ साथ आपकी इस प्रॉब्लम्स को, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पर आपको किसी ना किसी दिन एक डाउट सेशन होगा। उस डाउट सेशन में आपके डिफरेंट जो जो प्रॉब्लम इकट्ठी होती जाएंगी उनको आप नोट करते जाइए। नोट करने के बाद आपको एक लिंक दे देंगे एस्पिरेशन आईडी में, उस पे आपने उस प्रॉब्लम को डालना है, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ तक जितना आज के ऑनलाइन लेक्चर में दिया गया है, इसके लिए आपको कितना मैं पोल करना चाहूंगा, कितने लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया? Vidyasagar ji, you can actually throw open the chat room. If people want to share, if they want to type something, they can type Okay, their sir. feedback. Option chat करो। Rakesh, kindly help us to open the chat room, please. You can see students chat. Yeah, I've seen. 97% students understood the session. Yeah, good, sir. In math subject, 97% is more, sir. No. They have made our day, sir. Yeah, 97% means 1-2% they might not have understood. They will see the video. But it's a very good, sir. 97%. 97% is good, sir. Good response, sir. Sir, we will end at 10:15 because other session also has to. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Up in terms of
there are few questions that are coming up in terms of doubts कैसे पूछेंगे and all. Just kindly उस पे थोड़ा विद्यासागर जी, as you see the chat and some of these questions. डाउट्स जो हैं इनके आप लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा सर. आप इनको आंसर करते जाइएगा. some of those things आपको एस्पिरेशन में आपको स्लॉट दिखेगा फॉर आस्किंग डाउट. वहां पे आप कृपया टाइप कर दीजिए. इफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, काइंडली गो एंड रीविजिट द होल वीडियो अगेन. ये वीडियो आपको सवेरे तक आ जाएगी आपके एसपी अकाउंट में, और वहां पे देखिएगा. और पुनः देखने के बाद फिर भी आपका डाउट बचता है तो वो डाउट क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास एसपी में है, वहां पे आप डाउट पूछ लीजिएगा. जब अगला सेशन होगा मैथमेटिक्स का, आपका डाउट जरूर उसको एड्रेस किया जाएगा. हाँ स्टूडेंट्स, डाउट सेशन आपका जो है, अभी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए. इकट्ठा करने के बाद जो एस्पिरेशन अकाउंट है आपका, उस एस्पिरेशन अकाउंट में आपने डाल देना है, और आपके डाउट्स को, जितने भी आपके डाउट्स आएंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, और जो कॉमन डाउट्स होंगे वो कॉमन प्लेटफॉर्म पर आपके सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे. ये बेफिक्र होइए, आपकी फ्रेंडशिप आपको मैथमेटिक्स को गले लगाना होगा, यानी उसकी दोस्ती पक्की करवा के रहेंगे. और ये हमारी गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बेस्ट दें. ठीक है. और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप एस्पिरेशन अकाउंट में आपका वीडियोस आपके पास हैं, वीडियोस को बार बार खोलकर देखिए. देखने के बाद आप इसको, फिर भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप डाउट सेंड कर सकते हैं. ठीक है. आप डिस्कस कीजिए आपस में, फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए. डाउट्स फिर भी आते हैं तो आप इसको आप कर सकते हैं.